तो मेटालिक बॉन्ड में अगर आप ये चीज ऐड कर लें साथ, मैं दोबारा हेडिंग बस दे रहा हूँ, आप हेडिंग ना दें। तो मेटालिक बॉन्ड में इफ यू कुड ऐड दिस, like how do we know which metal has stronger or weaker metallic bond, right? Strength of metallic bond. So the strength of metallic bond है, it depends on two things, mainly two things. एक तो size of atom पे, कि metal atom का size कितना बड़ा है, atoms bigger size के हैं, smaller size के हैं. And the second is the number of delocalized electrons. So there is a relation between the two. मैं इसको लिख लेता हूँ पहले, फिर मैं explain करता हूँ. तो metallic bond strength is inversely proportional to the atomic size smaller the atoms, stronger the metallic bond. और फिर the second is metallic bond strength is directly proportional to the number of delocalized electrons. So these are the two factors rather which control the strength of the metallic bond, right? Atomic size and the number of delocalized electrons. Stronger than inverse relation है. और जितने delocalized electrons ज़्यादा होंगे, actually negative electrons, delocalized electrons mean more negative charge. So if you got more electrons delocalized, तो उतना ही ज़्यादा negative charge का C large होगा, and that will create stronger attraction between the positive ions, right? इस basis पे these are the two factors which control the metallic bond strength. और इसके साथ एक और point मैं नीचे लिख दूं, और वो ये कि ये तो factors हैं. Second is stronger the metallic bond, greater the metallic properties. किसी भी मेटल की जो मेटालिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसकी मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती हैं. एंड मेटालिक प्रॉपर्टीज इंक्लूड मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कि डक्टाइल कितना है, मेलेबल कितना है, ठीक है. तो ये आगे हम एग्जांपल से डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी मैंने पॉइंट्स लिख दिए, इनको लिंक कर दिए, और अब आ जाएंगे एग्जांपल पे. अब if we apply this concept on the metals group, say let's say we had this group 1, all metals, right? Group 2, all metals. Then we have transition. Periodic table mein most of the elements are metals, by the way. Like out of 118 natural and artificial element, around 92 are metals, baki non-metals or gases. So group 1 mein, as we go down the group, so the atomic size increases. In all the groups, atomic size increases down the group. So up top pe we have lithium, sodium, potassium, rubidium, तो सीजियम वगैरह. अब जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो व्हाट इज हैपनिंग इज के एटॉमिक साइज और नंबर ऑफ delocalized electrons, फिर metallic bond strength, और melting point. Okay, so this is like group 1 metals, alkali metals, और इस पे if we list these things that I've written on the right hand side, so as we are going down, the atomic size is increasing, right? Increases. So atomic size increases,
And what would happen to the number of delocalized electrons? Number of delocalized electrons. How many electrons could sodium delocalize? So what are delocalized electrons? कल जो पढ़ा था. Free moving electrons, and which are those? They are the valence electrons. अब sodium, if I say कि how many electrons sodium can delocalize, तो जितने उसके outer shell में वही delocalize करेगा ना, 1. So the elements in the same group could actually delocalize same number of electrons. They all have same valence electrons, right? Group 1 के सारों element के पास सबके पास एक एक valence electron है ना, तो सारी एक एक electron delocalize करेंगे, तो जो number of delocalized electrons है down that way remain same. That does not change. If I'll put charge on these, तो फिर आपको बेहतर समझ आएगी. They all are like +1. तो ये सब के सब एक ही इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते. अच्छा, अब बेस्ड ऑन दीज टू थिंग्स एंड दोज पॉइंट्स, हाउ वुड यू कमेंट ऑन द मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ? मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप विल बी डिक्रीजिंग, क्योंकि देखो नंबर ऑफ डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन तो उसको कंट्रोल नहीं कर रहा ना, वो तो सेम है. तो अब डाउन द ग्रुप मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ को कौन कंट्रोल कर रहा है? एटॉमिक साइज. So atomic size, because it's increasing down the group, so the metallic bond strength down the group decreases. अब this is really important, और इसी में students की mistakes होती हैं, melting point, और यही examiner question में देता है कि if we go down the group, metals की बात हो रही है, तो how would the melting point change? Increase, decrease? सेम तो नहीं रहेगा ना ऑब्वियसली. तो डाउन द ग्रुप मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट कैसे चेंज होगा? इट लिंक्स टू दिस. बताओ. द मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इन मेटल्स decreases, right? क्योंकि मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो रहा है. जब द थिंग इज कि ओ लेवल में ये कॉन्सेप्ट है नहीं, IGCSE वगैरह में, तो वहाँ वो आपसे पूछते भी नहीं है. बट समहाउ आई हैव सीन स्टूडेंट्स हैव मेड अप दिस कॉन्सेप्ट इन देयर ओन माइंड कि जैसे जैसे हम ग्रुप्स में नीचे जाते हैं मेटल्स के, तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है. इट इज रॉन्ग. एक्चुअली इट्स नॉट कंट्रोल्ड दैट वे. मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ उसको कंट्रोल करती है, और वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है. तो मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस. And I repeat कि it is only for the metals we are talking about. ये हम non metals की बात नहीं कर रहे थे. Non metals group 7 में halogens हैं. They're all non metals. Non metals में तो metallic bond नहीं होगा ना. Non metals में there are different factors and criteria which control the like melting boiling point. तो non metals में तो rather melting point down the group increase होता है. ठीक है, अगर आप group 7 को recall करें, halogens, fluorine, chlorine, bromine, iodine, तो वहाँ फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस, फिर ब्रोमीन लिक्विड और आयोडीन सॉलिड. तो ग्रुप 7 में जब आप नीचे जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है. नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज मेटल्स का ऑपोजिट होती हैं. तो मेटल्स में मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज, नॉन मेटल्स में इंक्रीज, विद डिफरेंट रीजंस. ऑब्वियसली सेम रीजंस के साथ कोई नहीं है. आई होप आपको ये चीज याद रहेगी. एमसीक्यूज में एग्जामिनर आस्क्ड यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज और स्टेटमेंट अबाउट ग्रुप 1 मेटल्स इज करेक्ट. बड़ी सारी बातें लिखी होंगी, तो करेक्ट एक ही होगी ना 4 में से. और जब आपसे ये क्वेश्चन आ जाए इज नॉट करेक्ट, तो इज नॉट करेक्ट में नेचुरली 3 करेक्ट होंगी, एक करेक्ट नहीं होगी. तो इफ इट्स अबाउट मेल्टिंग पॉइंट, यू शुड रिमेंबर कि डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स का डिक्रीज होता है. इसकी रीजन बड़ी सिंपल है. कुछ बच्चों को ये क्लियर नहीं होता, तो मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखो, अगर मेरे पास लिथियम का लैटिस है, लिथियम का लैटिस smaller atoms, same one positive charge, all these are like 1 plus. And if against lithium I draw maybe rubidium or this potassium lattice, potassium or rubidium atoms are bigger, but the thing they have common to lithium is that they also have same amount of charge. पोटेशियम के लैटिस पे भी इन सब पे +1 सब पे चार्ज है, क्योंकि दे हैव लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन. अब इधर आप देखें तो द टोटल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इज -6 एंड +6. 6 एटम्स ड्रॉ किए हैं ना मैंने, +6 -6. यहाँ भी द टोटल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इज +6 एंड -6.
अब the thing is that same amount of charge in lithium it's spread on smaller area, right? Smaller spheres, smaller atoms. But potassium में same amount of charge is spread on bigger sphere, bigger atoms. It's just like कि आपके पास एक टेबल टेनिस बॉल है और उस पे +1 चार्ज है, और फिर बास्केटबॉल है उस पे भी +1 चार्ज है। तो बास्केटबॉल पे पर यूनिट एरिया चार्ज कम हो जाएगा क्योंकि वो बड़े स्फीयर पे स्प्रेड हुआ है। तो जब बड़े स्फीयर पे चार्ज स्प्रेड होगा, पर यूनिट एरिया चार्ज कम हो गया, तो अट्रैक्शन कम हो जाएगी पार्टिकल्स के बीच में। सो इन शॉर्ट, बिगर द एटम्स ऑफ द मेटल्स, वीकर द मेटालिक बॉन्ड। वीकर मेटालिक बॉन्ड मींस कि उसको मेल्ट करना आसान है, मुश्किल नहीं है। आई होप ये चीज आपको समझ आई है। On the other hand, examiner hardly touches this concept from metallic bond. ये शायद कल भी मैंने कहा था कि एक नया कॉन्सेप्ट ए लेवल में है इसमें, लेकिन एग्जामिनर इसको पूछता नहीं। एमसीक्यूज में मेल्टिंग पॉइंट कभी आ जाता है, बट आई ऑलवेज फील कि जो चीजें मिस्ड हैं एग्जाम्स में स्ट्रक्चर्ड पेपर में, इन पे कभी प्रॉपर 5-6 मार्क्स का थ्योरी में क्वेश्चन बनेगा और फिर इट विल बी डिफिकल्ट फॉर एवरी स्टूडेंट टू आंसर दैट। इस सेंस में मैंने इसको एक्सप्लेन किया। अब इसमें कोई क्वेश्चन है पूछ लें, एक एग्जाम्पल में इसमें और ऐड करूंगा, फिर हमारा ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट। अच्छा, ये तो मैंने आपको ग्रुप में बताया, बट लेट्स क्विकली डू दैट फॉर द पीरियड आल्सो। लाइक एक पीरियड में हमारे पास स्टार्ट में मेटल्स होती हैं, फिर नॉन मेटल्स आ जाती हैं। ठीक है, किसी भी पीरियड में आप जाएं तो स्टार्ट में मेटल्स फिर नॉन मेटल्स। तो इसलिए हम पूरे पीरियड पे इस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ सकते, वी स्टिक टू द मेटल्स पार्ट ओनली। तो अब अगर किसी पीरियड में, जैसे थर्ड पीरियड हमारे सिलेबस में प्राइमरीली, अगर मैं उसको पिक करता हूँ, तो थर्ड पीरियड में we have sodium in the start, फिर magnesium and aluminum. So sodium, magnesium, aluminum. This is for the third period elements. Third period में sodium, magnesium, aluminum. अब इसमें अगर मैं ये लिखता हूँ कि एटॉमिक साइज और delocalized electrons, और फिर ये मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, and then melting point. जी अस्सलाम वालेकुम। जी एएस केमिस्ट्री की केमिस्ट्री जी जी हाँ। हाँ बेटा उस चेयर पे आ। Okay, so if for these three metals which are like third period metals, if I would list all these things here, देखिए सोडियम ग्रुप 1 में it would be +1, magnesium would be +2, aluminum would be +3, because they have different number of electrons in their valence shell, right? Sodium group 1 में तो +1, ये +2, ये +3. जब atomic size तो across the period decreases, we had studied that earlier. Number of delocalized electrons, they are increasing, right? क्योंकि aluminum's outer shell has 3 electrons, so it can give 3 electrons. Sodium के पास 1 है, इसके पास 2 है. Each metal here is from a different group. The number of delocalized electrons increase. What would happen to the metallic bond strength? I've listed the factors still there. How would the metallic bond strength from sodium to aluminum change? Increase, in decrease, increase, increase, right? If the metallic bond strength is increasing, so the melting point will also increase. ठीक है? नहीं, ये तो क्लास जब बड़ी स्ट्रेंथ होती है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन में
कुछ स्टूडेंट इंक्रीज कह रहे होते हैं, कुछ डिक्रीज कह रहे होते हैं, और मुझे ये हाइब्रिड वर्ड सुनाई देता है, इन डिक्रीज। सही कह रहा हूँ? तो इसलिए just to make sure metallic bond strength across the period decreases, increases, and that increases the melting point, so much so group 1 metals are soft। ठीक है, ये आपने याद रखना है जनरल पॉइंट। ये आपने वो लेवल IGCSE में भी पढ़ा हुआ है कि ग्रुप 1 मेटल्स आर सॉफ्ट एंड देयर लेस डेंस देन वाटर, उनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। ग्रुप 1 मेटल में लेट्स से इफ यू हैव सोडियम, तो यू कैन एक्चुअली होल्ड सोडियम विद सम प्रोटेक्शन ऑन द हैंड, ग्लव्स पहन के अगर आप सोडियम, क्योंकि वो एक्सक्रोसिव फॉर द स्किन, इट रिएक्ट्स विद मॉइस्चर सोडियम वेरी फास्ट। तो आप ग्लव्स पहन के अगर सोडियम का पीस आपके हाथ में, तो यू कुड एक्चुअली स्क्वीज इट लाइक सोप, इट्स लाइक सॉफ्ट मेटल्स, ग्रुप 1 के जो मेटल्स। अब if you could actually hold a metal and you can squeeze it like soap, it means the metallic bond in that metal is not that strong, उसके एटम्स में बॉन्डिंग पक्की नहीं है, वीक है। और आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि we can actually cut group 1 metals with single stroke of knife, ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। अब मसला ये है ना कि पिछले 1-2 सालों से ये ओ लेवल वाली बातें करते हुए क्लास में थोड़ी एम्बेरसमेंट ही होती, मैंने देखा कि जब हम ये कहते हैं आपने पढ़ा हुआ है, तो जैसे पहले स्टूडेंट्स रिस्पांस देते थे, अब पिछले 1-2 सालों से नहीं देते। एग्जामिनर तो इन चीजों को नहीं कंसिडर करेगा, वो तो क्वेश्चन देता है ओ लेवल से भी। तो ग्रुप 1 की जो मेटल्स हैं, दे आर सॉफ्ट, दे आर लेस डेंस देन वाटर, दे फ्लोट ऑन वाटर, राइट? ये भी पढ़ा हुआ। अस्तगफिरुल्लाह, आप क्या करना है। एसिड बेसिस सॉल्ट्स वाला चैप्टर ओ लेवल से और मेटल्स थोड़ा रिवाइज जरूर कर लें। ये मैं आपको सही पते की बात बता रहा हूँ। नहीं तो मैं जब कह रहा हूँ ग्रुप 1 मेटल्स फ्लोट ऑन वाटर, तो आप लोगों के एक्सप्रेशन से मुझे लग रहा है कि आपको ये बात नहीं पता। नहीं, एक्सप्रेशन क्यों नजर आते, एक्सप्रेशन तो पता चलता है ना मास से। तो भैया ग्रुप 1 मेटल, जैसे सोडियम का सबसे फेवरेट जो रिएक्शन है स्टूडेंट्स का, वो यही है ना कि बीकर ले लें और उसमें सोडियम फेंक के देखें क्या होता है, यही है ना। सोडियम अब बैन कर दिए गवर्नमेंट ने। कुछ मेटल्स हैं और सल्फर है, अमोनियम सॉल्ट्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं। मेरे पास अपना इधर लैब है पूरी पीछे रूम में बंद की हुई मैंने, तो मैंने पूरी कोशिश की थी मुझे ये सोडियम सल्फर मिल जाए कहीं से, नहीं दिया उन्होंने। ले लूंगा खैर मैं, लेकिन ये उन्होंने ये पिछले 5-6 सालों में सख्ती कर दी। यू कैन मेक एक्सप्लोसिव्स आउट ऑफ इट। मूवीज में बनता है बेटा, इधर इस तरह से रियल लाइफ में हर चीज का एक्सप्लोसिव नहीं बनता, लेकिन सोडियम मेटल तो इटसेल्फ इज लाइक लाइव एक्सप्लोसिव, यू कैन पुट इट इन एनीथिंग, इट एक्सप्लोड्स। अच्छा, ये जो बात मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये सिर्फ उस मेटल की मेटालिक प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल नहीं है, इट रिफ्लेक्ट्स इन इट्स मेटालिक प्रॉपर्टीज आल्सो, कि वो सॉफ्ट है, लेस मेलेबल है। अच्छा, वर्ड डक्टाइल और मेलेबल का क्या मतलब है? द थिंग इज कि मेटल्स हमारे सिलेबस में आगे हैं नहीं, और ये चीजें आती रहती हैं। मेलेबल इज something that you could fold or bend into different shape, flexible नहीं हम कहेंगे इसको। malleability is that ability of substance to be turned into different shapes, और फ्लेक्सिबिलिटी ये होती है कि एक चीज है उसको आपने, जैसे रबर है, उसको आप स्ट्रेच करते हो स्ट्रेच हो जाएगी, बट वंस यू लीव इट तो इट विल कम बैक टू इट्स नेचुरल शेप, दैट इज व्हाट फ्लेक्सिबल इज। अब एक मेटल अगर मेलेबल, उसको मैंने हैमर करके फोल्ड कर दिया, इट वोंट गो बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप अनलेस आई डू दैट, तो इसको हम मेलेबल कहेंगे, फ्लेक्सिबल नहीं कहेंगे। प्लास्टिक है, पॉलीमर्स फ्लेक्सिबल होते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर डक्टाइल क्या होता है? जो बिल्कुल डक्टाइल हुआ ना। डक्टाइल क्या होता है भाई? अब ये देखो ना, ये ओ लेवल में पढ़ा हुआ है, और पहले पूछते थे तो बच्चे क्विक आंसर देते थे। इसमें गलती आप लोगों की नहीं है, एग्जाम्स नहीं ना हुए तो इस वजह से रिइंफोर्स नहीं हुआ वो। गूगल करोगे माशाल्लाह, कुछ भी नहीं है। देखो डक्टाइल वाइड्स जो बन जाते, डक्टाइल इज अ सब्सटेंस दैट कैन बी स्ट्रेच्ड और पुल्ड इनटू वाइड्स, ठीक है। लाइक आपके पास अगर कॉपर रॉड है, उसको स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिक क्लैंप्स होते हैं, उसमें लगा के यू पुल इट एंड इट गेट्स स्ट्रेच्ड इनटू अ थिन वायर एंड डजंट ब्रेक, वी वुड से कॉपर इज डक्टाइल। अच्छा, अब अगर एक सब्सटेंस और मेटल डक्टाइल है, इट मींस इसके मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इट डजंट मीन कि वो वीक है। रीजन बीइंग कि जो मेटल के एटम्स है, दे कीप ऑन स्लाइडिंग ऑन ईच अदर इन लेयर्स, बट दे डोंट ब्रेक आउट, सेपरेट नहीं होते।
तो स्ट्रॉन्गर द मेटालिक बॉन्ड, ग्रेटर द मेलेबिलिटी एंड ग्रेटर द डक्टिलिटी, ठीक है, ज्यादा डक्टाइल होगा, ज्यादा मेलेबल होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। अब इसमें कोई क्वेश्चन है पूछ लें। मेटालिक बॉन्ड हमारा कंप्लीट है और अब नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इजी टॉपिक है ये वाला, लेकिन कुछ एमसीक्यूज में क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे इनसे। सो नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। So in bonding chapter we have this ionic bond, covalent bond, metallic bond, फिर अब इसके बाद ये सब न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड के बाद we have bond properties, intermolecular forces, shapes of molecules, extremely important topic। I mean अगर आपने ये बॉन्ड प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट मिस किया तो आपको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं समझ आती, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं समझ आती तो आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिजिकल प्रॉपर्टीज में बड़ा इशू रहता है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको वाटर में डालते हैं वो डिसॉल्व हो जाता है, दूसरा नहीं होता। तो उसकी रीजनिंग कम्स फ्रॉम दीज कॉन्सेप्ट। फिर कोई चीज कंडक्टिविटी है, करंट पास करती है, कोई नहीं करती, किसी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, कम है। ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स अबाउट कोवलेंट कंपाउंड आर आंसर्ड थ्रू दीज फ्यू कॉन्सेप्ट्स दैट विल बी डूइंग इन फ्यूचर। तो इसकी हम हेडिंग दे देंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। क्या हुआ हमारा? नहीं मिल रहा ना, समोसा बजट शॉर्ट कर दिया। समोसा वैसे अब मुझे याद करा दिया आपने। मैं तहरीक चलाऊं तो समोसे आते हैं, वरना बाकी लोग जो है ना, इधर तो लोग चाय नहीं पीते। I've not come across many teachers who don't take tea। मैं तो घर से निकलता हूँ ना 4:45 शाम को, तो भी चाय पी के आता हूँ। इनको मैंने बताया मैं चाय नहीं पी के आया हूँ, फ्री मेरी चाय आ जाए। चाय तो मैं फॉर्मेलिटी के लिए पीता हूँ, फ्यूचर वर्ल्ड में मैं कॉफी पीता हूँ। फिर सारे स्कूल्स में मैंने बंदे रखे हुए वो मुझे देते रहते हैं कुछ ना कुछ। ये तो मजबूर है ना। बाकी घर वाली से मैं कॉफी बनवाता रहता हूँ और एंड करता हूँ ग्रीन टी से। हाँ, वैसे इतना ज्यादा कैफीन अच्छा नहीं होता, लेकिन अब क्या करें, आदत बन गई। कोऑर्डिनेट कोवलेंट, सारी रिकॉर्डिंग होगी। अब मुझे वीडियो एडिटिंग वाला बंदा कोई चाहिए जो है ना, ये मेरी सारी फजूलियात काट काट के बीच में से वीडियो छोटी कर दिया करे, फिर शेयर करनी भी आसान होती है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इसको शॉर्टली डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, और बुक्स में क्वेश्चंस में आपको डेटिव बॉन्ड ही वर्ड मिलेगा, बट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज प्रॉपर केमिस्ट्री टर्म फॉर इट। और कुछ दफा क्या होता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ही यूज करता है, तो इसलिए फिर यू नो इफ यू डोंट यूज दिस प्रॉपर टर्म फॉर इट तो फिर ये नेचुरली आपको मुश्किल बात लगेगी। अच्छा, अब इस बॉन्ड को हम दिखाते हैं बाय एन एरो। दिस बॉन्ड इज शोन बाय एन एरो, और एरो की भी अपनी एक मीनिंग है, लेकिन मैंने एरो स्टार्ट में लगा दिया। जैसे कोवलेंट बॉन्ड के लिए वी ड्रॉ द लाइंस, सिंगल लाइन, डबल लाइन एंड ट्रिपल लाइन, राइट। कोऑर्डिनेट कोवलेंट और डेटिव बॉन्ड इज शोन बाय एन एरो। अब कोवलेंट बॉन्ड की तो टाइप्स हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल, बट को डेटिव बॉन्ड की कोई टाइप्स नहीं है। लाइक बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में एक वक्त में अगर कोवलेंट बॉन्ड की आप बात करें तो दो एटम के बीच में एक वक्त में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी बन सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है। ठीक है, अभी हमने कोवलेंट बॉन्डिंग की थी, सिंगल लाइन, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन। लेकिन जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, डेटिव बॉन्ड, बिटवीन टू एटम्स एट वन टाइम देयर विल बी वन एरो ओनली। एक ही एरो बनेगा, एक ही डेटिव बॉन्ड बनेगा। एक जगह पर दो डेटिव बॉन्ड नहीं बन सकते। हाँ, इफ द मॉलिक्यूल इज बिग तो मे बी डिफरेंट जगहों पे इट्स मेकिंग 2 और 3 डेटिव बॉन्ड्स, लेकिन नॉट बिटवीन टू एटम्स एट सेम पॉइंट। इसकी थोड़ी आगे चल के भी समझ आएगी, लेकिन ये क्वेश्चन नेचुरली स्टूडेंट्स बाद में सोचते हैं, पूछते हैं। बिटवीन टू एटम्स एट द सेम पॉइंट 2 डेटिव बॉन्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड फॉर मेनी रीजंस।
अच्छा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नाम से भी इंडिकेट हो रहा है कि ये कोवलेंट बॉन्ड की टाइप है आगे। लेकिन फर्क क्या है कि कोवलेंट बॉन्ड में बोथ एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन एक से आ रहा है, दूसरा दूसरे से आ रहा है, एक का डॉट एक का क्रॉस, और फिर वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ बोथ एटम्स। ठीक है, ये कोवलेंट बॉन्डिंग में दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। कोवलेंट बॉन्डिंग में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल मीन दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन देंगे। बट डेटिव बॉन्डिंग में क्या होता है कि बोथ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर यूज्ड इन द बॉन्डिंग कम फ्रॉम वन एटम, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से आते हैं। बट जब वो शेयर हो जाते हैं फिर वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों एटम से मूव करता रहता है। तो फर्क सिर्फ ये है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम सेम एटम एंड देन इट इज शेयर्ड। अब जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम से आएंगे तो फिर आपने उनको डॉट्स के साथ दिखाना है या सेम क्रॉस के साथ दिखाना है। मतलब डेटिव बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी शोन सेम, नॉट डॉट एंड क्रॉस। ठीक है, ये बातें जो मैंने बोली मैं इनको थोड़ा लिखता हूँ, एग्जाम्पल में समझ आएगा। सो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय sharing of electrons while both the electrons in the shared pair are donated by one atom both the electrons in the shared pair are donated by one atom। अच्छा, अब जो एटम आयन और मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, एटम हो आयन हो या मॉलिक्यूल भी हो, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो एटम ही होगा खुद, तो इसलिए मैंने उसको वहां पे एटम लिखा है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको हम लाइगेंड कहते हैं। ठीक है, मैं उसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ, वो अलग से भी आ जाती है। लाइगेंड और लिगेंड कह लें, इसकी जो डेफिनेशन है प्रॉपर, इट इज अ स्पीशी व्हिच हैज एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसके पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर पड़ा हो उसको हम लाइगेंड कहते हैं। सो स्पीशी विथ at least one lone pair of electron लोन पेयर वो होता है जो बॉन्डिंग में भी यूज नहीं हुआ हुआ। ठीक है, बॉन्डिंग करने के बाद जो पेयर बचता है उसको वी कॉल इट लोन पेयर, और जिसके पास एटलीस्ट एक लोन पेयर होगा वी कॉल इट लाइगेंड, और लाइगेंड जो होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। लाइगेंड की एग्जांपल्स आप दो तीन इधर लिख लेंगे, एक अमोनिया, वाटर, Cn negative ion, OH negative ion, they're all the common ligands that you should always remember, like NH3, water, Cn negative ion and OH negative ion। इन सब के ऊपर ये जो मैंने रेड डॉट्स लगाए हैं ये इनके लोन पेयर्स हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। तो वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं, मैंने सिर्फ एक ड्रॉ किया हुआ है, बट इट हैज 2 लोन पेयर्स। Cn पे एक लोन पेयर है, तो इन सारों के पास एक एक लोन पेयर, इन सबको हम लिगेंड्स कहते हैं। आपको एमसीक्यूज में एग्जामिनर ऑप्शंस देके पूछ लेते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिगेंड और नॉट, या डेफिनेशन लिगेंड की पूछ लेता अलग से, तो ये आपने रखने याद। अब इनकी करेंगे एग्जांपल्स अब कल की क्लास में। ठीक है, डेटिव बॉन्ड BF3 जो है इट कैन नॉट बी अ लिगेंड क्योंकि बोरॉन का आउटर शेल कंप्लीट नहीं है, लेकिन BF3 विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्डिंग। डेटिव बॉन्डिंग में BF3 पार्टिसिपेट करेगा। तो लिगेंड तो वो होता है जो कंप्लीट और स्टेबल होता है, बट उसके पास जैसे वाटर है, water doesn't need any extra bonding, but sometime it comes across such molecules which need electron, तो ये उनको ऑफर कर देता है। उनकी एग्जांपल्स अब कल की क्लास में इंशाल्लाह हम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक कोई डाउट है, क्वेश्चन है, पूछ लें। बाकी हमारा आपने मांगी थी रिकॉर्डिंग, नहीं दूसरे माद ने मांगी थी, मैं शाम क्लास के बाद शेयर कर दूंगा।